Hello friends, we are going to start with the kingdom protista, and from this video you have to note down the whole points within your notes and make the fair notes from this. Basically basically this protista are divided into three groups on the basis of the mode of nutrition of them. The very first is the photosynthetic or the protista, which have the pigments like chlorophyll A, C, xanthophyll, keratin like pigment, which make them unable to synthesize their own food in the presence of light. So they are all known as the photosynthetic protist or autotrophic protist. The second one is known as the consumers or decomposers. So here they based on or they just secrete the digestive juice and convert the complex organic matter into simple inorganic and convert them into a simple substance, and by this mean they get their nutrition from the dead and decaying matter. So they are serving themselves as the decomposers. The third one, the branch of the mode of nutrition, is they are heterotrophic or they are depend on other organisms for the food, and they are the heterotrophic protozoans. So here the example of the heterotrophic protozoans, amoeboids, sarcodines जिसको बोलते हैं, flagellates and ciliatids. Okay, so these are the four categories: protozoans, amoeboids, flagellate and ciliated, which is included in heterotrophic protist. Okay, so the next one we are going to discuss a general characteristic of them. Okay, and photosynthetic examples are diatoms, dinoflagellates and euglenoids. Consumer or decomposers type of practice, in that we are considering acellular, cellular and slime mold. Okay, जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस करें प्रोटिस्टा के, तो प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेल्युलर, means made up of single cellular, along with them having a very well developed nucleus. As you know, my dear students, eukaryotes having a well developed nucleus means their nucleus is surrounded by the nuclear membrane, and the organelles which is present within the cell that containing a membrane bound organelles, and that is the specialty of the eukaryotic organisms. So the cells are a single cell, means made up of one single cell, and they are eukaryotic. Most of them have aquatic habitat, means that aquatic habitat, that means they live within the water. Few of them are terrestrial and live as the parasite. इन दिस ग्रुप लोकोमोशन के लिए इनके पास अलग अलग से तरीके हैं, जैसे कि दे आर मूविंग विद द हेल्प ऑफ द सिलिया. एज यू नो, सिलिया आर लार्जर इन अ नंबर एंड स्मॉलर इन अ साइज comparatively the flagella is one or two in a number, elongated and having more length than the cilia. So their body is covered with the very small sized cilia and having a one or two flagella. With the help of that they are going to be moved. Here I mentioned that the flagella having a 9+2 arrangement, that means 9 protein, circular protein which is arranged in the periphery, and the 2 protein which is present in the center. पेरिफेरल 9 प्रोटीन जो होते हैं उसको सेंटर में जो 2 प्रोटीन है उसके साथ कनेक्शन में रहेंगे, एंड लाइक वाइज दे आर फॉर्मिंग अ cartwheel like structure. This kind of the structure you will able to find in a flagella. This point we already discussed in our previous video, so you well known about this. Mode of nutrition if we talk about, so the autotrophic के लिए they do the process of photosynthesis in the presence of light. Decomposers type में some of them are living as a free living, means they just find in the environment, and some of them are holozoic means they engulf the wholesome food, so they are holozoic. And few of them are parasitic, means they remain inside the host body, and host body में से फिर अपना न्यूट्रिशन है वो गेन करते हैं. मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक बॉडी सिंपल सा होता है यूनिसेलुलर बॉडी विच डिवाइड देमसेल्व्स विद इन अ 2 equal parts, so maybe by binary fission, that is a asexual mode of reproduction, and in a sexual they are producing gametes. So on the basis of the production of gametes or its type of the gametes, it is of 3 types, and that's are
The very first is the isogamous. The male and female gamete are equally in a size, so it is called as the isogamous. Iso matlab equal, gamous matlab gamete. So here the size of a male and female gamete is equal, so it is a isogamy. The second one is the anisogamy. Here the gamete size is a different. The male and female gametes, if we see, then in an anisogamy, two gametes having a unequal size. Male gamete is smaller in a size and female gamete is a larger in a size, both having a flagella. Okay, oogamous. In that one, oogamous means, if we talk about the female gamete is large in a size comparatively to the male gametes. एंड सी दैट ऊ गैमस में जो ओवा की तरह सर्व करने वाला और फीमेल गैमेट है वो लार्ज साइज़ में है, उसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है. और इन अ मेल गैमेट्स इफ यू सी देन इट हैव द फ्लैजेला टू मूव, सो इट इज़ अ type of a oogamy. So basically this is the mode of sexual reproduction in which they are producing two different kinds of the gamete. Very first is the isogamy, both the gametes are having a equal size. Anisogamy, both the gametes having a unequal in a size. And oogamous means one gamete is larger or bigger in a size and the another one is a small in a size. Okay, let us move. The differences between the oogamous में about male gamete and female gamete. In oogametes, as I told you, कि female gamete is large in size comparative to the male one. जो फीमेल गैमेट है क्योंकि वो लार्ज में साइज़ में लार्ज है और इट नॉट हैविंग एनी लोकोमोटरी ऑर्गन, तो वो क्या करता है, इट रिजर्व द फूड मटेरियल को स्टोर करता है, नॉन मोटाइल होता है और वहाँ पे ये साइज़ में बड़ा है, इसीलिए इट प्रोड्यूसिंग अ लेस नंबर और स्मॉल नंबर ऑफ द ओवा. इफ़ वी टॉक अबाउट द मेल गैमेट्स तो वो साइज़ में छोटे हैं, दे हैव द लोकोमोटरी ऑर्गन, तो वो मोटाइल है, वो फूड को स्टोर नहीं करते हैं बिकॉज स्मॉलर साइज़ है और उसको मूव होना है. तो अगर फूड का स्टोरेज ज़्यादा होगा तो दे विल फाइंड ट्रबल इन द मूविंग, राइट. सो वो लोगों के अंदर फूड का स्टोर भी नहीं होता है और उनका प्रोडक्शन है वो लार्ज होता है, ज़्यादा नंबर में होता है बिकॉज दे हैव टू मूव. सो मूवमेंट में आपको पता है कि व्हेन दे ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो देर इज़ पॉसिबिलिटीज़ के बहुत सारे जो गैमेट्स है दैट गोइंग टू बी फील्ड और उसका वो अमाउंट जितना पहुंचना चाहिए फीमेल गैमेट तक वो नहीं पहुंच पाएगा. दैट्स वाई वो हायर नंबर में ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोड्यूस. ओके, यहाँ पे दो टर्म है जो हम लोगों को जानने हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. वन इज़ द जाइगोटिक मियोसिस एंड द सेकेंड वन इज़ द गैमेटिक मियोसिस. ओके, नाम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे आफ्टर सिंगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो यहाँ पे आफ्टर सिंगेमी और आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो जाइगोट फॉर्म होगा वो जाइगोट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड जिससे बनने वाली पूरी बॉडी है वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, क्योंकि जाइगोट मियोसिस प्रोसेस में गया है. मतलब जाइगोट मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना था तो वो डाइप्लॉइड था. ओके, डाइप्लॉइड मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसको डाइप्लॉइड बोलते हैं, राइट. एंड यहाँ पे जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ वो मियोसिस में जाता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे. तो बाद में जितने भी सेल उसकी बॉडी में बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे. तो दिस इज कॉल्ड एज द जाइगोटिक मियोसिस. एंड द सेकेंड वन इज द गैमेटिक मियोसिस मीन्स व्हाट, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन ये जो जाइगोट है वो मियोसिस प्रोसेस में नहीं जाता है बट वो माइटोसिस प्रोसेस करता है. माइटोसिस मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम विच इज़ प्रेजेंट इन दिस जाइगोट. सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम मतलब वो डाइप्लॉइड ही है और माइटोटिकली डिवाइड होता है तो उससे बनने वाले सभी सेल है वो कैसे होंगे, डाइप्लॉइड ही होंगे. सो डाइप्लॉइड जाइगोट फॉर्म इंडिविजुअल्स एंड आफ्टर मियोसिस अकर कॉल्ड अ गैमेटिक मियोसिस. मतलब सिंपल ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तभी मियोसिस प्रोसेस थ्रू गैमेट है वो फॉर्म्ड होंगे. और जाइगोट में ऐसा बताया जा रहा है कि जो जाइगोट फॉर्म हो जाता है उसके बाद जाइगोट मियोसिस में जाता है और बनने वाला पूरा बॉडी है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा. सो दिस इज़ द टू टर्म्स दैट यू हैव टू नीड
to recall, and that is the zygotic meiosis and gametic meiosis. Okay, लेट अस मूव विद द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक की बात करेंगे. प्रोटिस्टा के जो हम लोगों ने 3 डिवीजन दिखाए यहाँ पे. ऑटोट्रॉफिक, दूसरा था डिकम्पोजर्स और कंज्यूमर्स, एंड थर्ड वन था दैट इज़ हिट्रोट्रॉफिक, राइट. तो उसमें पहला वन जो है ऑटोट्रॉफिक, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ऑटोट्रॉफिक में एज वी नो कि हम लोगों ने इंक्लूड किया है डायटम्स को. तो डायटम्स आर नॉन एज द गोल्डन ब्राउन एल्गे and it is called as the chrysophytes. Due to the presence of the pigmentation within their cytoplasm, it gives a specific color to their body, and that's why diatoms are known as the golden brown algae. They live in marine habitat. They are free living, and in this group they have the cilia and flagella. In this group cilia and flagella is absent, so they are non-motile, or they are found their body attached to the substratum. Okay, next move with this. In a mature cell if we talk about, so that is present in reproductive stage, उसका जो सेल वॉल होता है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड सिलिका. यहाँ पे एक सेल दिखाया हुआ है, सॉरी, ये सेल वॉल जो सिलिका एंड सेल्यूलोज का बना होता है, जिसको हम लोग फ्रिस्टुल बोलेंगे. फ्रिस्टुल इज़ अ सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड सिलिका. यहाँ पे इसका सेल दिखाया गया है कि दैट इज़ कवर्ड और एनक्लोज फ्रॉम अपर साइड से जो उसका कवरिंग होता है दैट इज़ नॉन एज द एपिथिका, एंड द base portion or the covering that is known as the hypotheca. So it is covered with the nucleus है वो covered हुआ है with the help of epitheca and hypotheca. यहाँ पे वैक्यूल कुछ ऐसे कंडेंस और कवर करता है न्यूक्लियस को, जैसे लगता है कि वैक्यूल हैविंग अ डीप डिप्रेशन विद इन दैट द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. ओके, विच काइंड ऑफ द सिमेट्री इज सीन इन दिस वन? So that is the presence of two kind of the symmetry, pinnate and centric. पिन्नेट टाइप में जो बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल इज़ द नेविक्यूला. एंड इन अ सेंट्रिक और रेडियल सिमेट्री जो है दैट इज़ हैविंग एग्जाम्पल ऑफ द मेलोसिरा. तो मेलोसिरा एंड नेविक्यूला के अंदर सिमेट्री पिन्नेट एंड सेंट्रिक स्पेशली है. चलो, न्यूक्लियस, एज आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियस लाइज इन द सेंट्रल वैक्यूल सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, राइट. तो साइटोप्लाज्म की हेल्प से न्यूक्लियस है वो वैक्यूल के सेंटर में क्या होता है, सस्पेंडेड होता है. एज वी डिस्कस इन दिस ग्रुप के ये सभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक है. सो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. क्यों? बिकॉज दे हैव द स्पेसिफिक पिगमेंट विच मेक देम अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो हियर दैट पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन. जेंथोफिल होता है, तो जेंथोफिल एज इट इज़ प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ, उसको नाम दिया है कि dinoxanthin and diatoxanthin which is present within them, which makes them unable to synthesize their own food. रिजर्व्ड फूड के फॉर्म में वो लोग क्या स्टोर करते हैं? ऑयल एंड कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइन. ल्यूकोसाइन इज लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाला रिजर्व्ड फूड मटेरियल है. एंड अलोंग विद दैट इट हैविंग अ वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स. वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स यहाँ पे स्टोर करेंगे प्रोटीन को विद इन देयर बॉडी. ओके, सो इट इज़ अ वेरी क्लियर कि भाई सेल वॉल सिलिका एंड सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसको फ्रिस्टुल बोलते हैं. सेल है वो एपिथिका एंड हाइपोथिका से कवर्ड होता है. न्यूक्लियस है वो वैक्यूल के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से सस्पेंडेड होता है. सिमेट्री मतलब बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की मेथड, उसको सिमेट्री बोलते हैं. तो यहाँ पे सिमेट्री दो टाइप की है, पिन्नेट एंड सेंट्रिक. पिन्नेट है उसमें हम लोगों ने देखा कि बाइलेटरल बॉडी को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका एग्जांपल है नेविल्यूका. एंड सेंट्रिक जहाँ पे हम लोग बॉडी को रेडियली 2 पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, राइट. मैं अलग से इनके पिक्चर्स और डायग्राम है आपके साथ शेयर करूँगी, तो डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा. एंड यू ऑल्सो हैव टू लेबलाइज एंड ड्रॉ द डायग्राम विद इट योर नोट्स, राइट. चलो, तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर है कि व्हाट इज़ द डिवीजन एंड द पार्ट्स ऑफ द प्रोटिस्ट. हम लोग मोर ओवर यहाँ पे आगे से डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट.